Hello friends, in previous classes we are discussing about tissue. What is tissue? We have already studied that tissue, a group of cells which are similar in structure, similar in function and common in origin is called tissue. We have already discussed about the advantage of tissue, why tissue has been formed. It reduces the workload of individual cell. It increases the efficiency of the living organism for the survival. It also produce division of labor. These are some advantage of tissue. And tissue, the study of tissue is known as histology, and Bichette is known as founder of histology. After then, we have already discussed about types of tissue, the plant tissue and animal tissue. The plant tissue and animal tissue. Plant tissue. In previous classes, we have discussed about plant tissue. Plant tissue have two types, has divided into two types: meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue and permanent tissue. What is meristematic tissue? The group of cells which have a capacity of cell division, and they help in the growth of the plant in all directions, in length, in width, in the branch, developing the branches. Right? We have already discussed about the characteristic of meristematic cells. They are oval, spherical, polygonal, arrangement, compactly arranged, intercellular space absent, dense cytoplasm, prominent and large nucleus, intercellular space absent. These are some nucleus, ribosome abundant, mitochondria abundant, vacuoles absent. We have already discussed. On the basis of position, the meristematic tissue are of three types: apical meristeme, lateral meristeme, and intracalary meristeme. Apical meristeme, lateral meristeme, and intercalary meristeme. This is the part 2 class of tissue. In first class, we have already discussed about the meristematic tissue and the types of meristematic tissue, and we have bifurcate into apical meristeme, lateral meristeme, and intercalary meristeme. Where does they are present? How does they help in the growth in the plants? Lateral meristeme helps in the growth in girth. Intercalary meristeme, they are present at the nodes as well as the base of leaf. They help in the internodal growth and formation of new branches. Right? Next class, after meristematic tissue, we are discussing about the permanent tissue. What are permanent tissue? Those meristematic tissue which have lost the capacity of cell division, and attain a permanent shape, size, and function due to differentiation, are called permanent tissue. The cells are either living or dead. The cell wall is either thin wall or thick wall. Cells are either thin wall or thick wall. Thickening is regular or irregular. Thickening is due to the deposition of either cellulose or lignin, suberin, pectin, whatever it may be. They constitute the most portion of the plant. They constitute the permanent tissue, constitute the most of the parts of the permanent plant.
and it is of mainly of two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue is again of three types: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Simple permanent tissue is of three types: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. First of all, we have to discuss what do you mean by simple permanent tissue. Simple permanent tissue are the group of cells. It is formed by only one type of structurally or functionally similar mature cells that have common origin. Means they are structurally, functionally, and matured cells. Matured cells means the cells, group of cells which have lost the capacity of cell division, but they are structurally and functionally mature group of structurally, functionally mature cells and have common origin, or it is called also known as homogeneous. एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक ही टाइप के सेल्स हैं जो है स्ट्रक्चरली फंक्शनली ये सेम है. ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं होमोजेनस. होमो मींस सिमिलर एंड इट इज नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू. द फंक्शन क्या है इनका? They are mostly supportive and protective tissue. जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, they are mostly protective and supportive tissue. Plants are stationary. Plants जो है वो stationary होते हैं. They have to face a lot of अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन. तो इनको प्रोटेक्शन और सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. एनिमल कैन मूव. अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन हुआ, एनिमल भाग करके मूव कर करके एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं. लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है. इनको हम बहुत तेज आंधी आई और हम घर के अंदर चले गए, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज दे आर स्टेशनरी. तो उसके केस में इनको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए और प्रोटेक्शन चाहिए. और ये कौन देता है? हमारा परमानेंट टिश्यू. उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू. राइट. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरली, एक स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो मैच्योर्ड होते हैं. मैच्योर्ड मींस दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन एंड अटेन अ परमानेंट शेप एंड साइज. दे इज आल्सो नोन एज होमोजेनस टिश्यू. होमोजेनस मींस सिमिलर टाइप. सिंपल यानी सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चरली
एंड फंक्शनली सिमिलर है, इसलिए कहा गया होमोजेनस। दे आर मोस्टली सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। ये कितने टाइप के होते हैं? और ये प्लांट के बल्क मेन ग्राउंड टिश्यू को बोलता है। इट इज आल्सो नोन एज ground tissue, because it constitutes the bulk of plant body, because it constitutes the bulk of plant body। ये क्या करते हैं? प्लांट के में सबसे ज्यादा इनका रोल होता है। प्लांट्स के बॉडी को बनाने में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो परमानेंट टिश्यू का होता है। उसमें खासकर सिंपल परमानेंट टिश्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या करते हैं? दे आर मोस्टली सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये प्लांट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्रोटेक्शन देते हैं। और इट फॉर्म्स मेन ग्राउंड टिश्यू, बैकग्राउंड टिश्यू, और ये कंस्टिट्यूट द बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं के द्वारा बनता है। इट इज ऑफ थ्री टाइप: पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। लेट अस लिसन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट पैरेन्काइमा। अबाउट पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा they are thin-walled living cells. They are constituted of, they are made up of, ये क्या होते हैं? thin-walled living cells के बने होते हैं। शेप कैसा होता है? Shape is oval, rounded. Shapes are oval, rounded, polygonal or elongated. Shapes are oval, rounded, polygonal or elongated. Loosely arranged. They are loosely arranged. Loosely arranged है, आप याद कीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या था? They are compactly arranged. जब compactly arranged तो क्या नहीं था? Intercellular space absent थे। यहाँ loosely arranged है तो intercellular space present, intercellular space present, they are the characteristic. Characteristic of parenchyma. They are loosely arranged or intercellular space present. Cell wall is made up of cellulose. Cell wall is made up of cellulose. Cytoplasm
dense nucleus small large central vacuole present. Large central vacuoles present. And they are mostly present in the soft parts of plants. They are mostly present soft parts of plant like cortex, cambium, etc. They are cell wall is made up of cellulose, cytoplasm dense, nucleus is small, large central vacuole present, cell wall is thin, made up of cellulose. These are the characteristics of parenchyma. There are some of special types. Parenchyma is again of two types. Special types. Chlorenchyma and arenchyma. Enchyma, chlorenchyma, tissue, air, chlorophyll, यानी chlorophyll plus parenchyma, enchyma, chlorenchyma. तो those parenchyma, ऐसे parenchyma जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, ऐसे parenchyma को हम chlorenchyma कहते हैं. Those parenchyma which contain chlorophyll is called chlorenchyma and helps in photosynthesis. कैसा होता है क्लोरेnchyma? ऐसे parenchyma जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट इन एबंडेंट, प्रचुर मात्रा में ढेर सारा क्लोरोफिल पाया जाता है, ऐसे parenchyma को हम chlorenchyma कहते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं. दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन लीव्स. They are mostly present in leaves. पत्तियों में पाए जाते हैं और पत्तियों में आपको हम लोग को पता है leaves are responsible for the photosynthesis because they have large surface area just to attract sunlight. वो उनका surface area पत्तियों का बड़ा होता है, वो सूरज की रोशनी को absorb करते हैं और help करते हैं photosynthesis में. तो what is
of parenchyma? Right? It contains chlorophyll in abundance. And third, it helps in the photosynthesis. Fourth, they are mostly present in leaves, in the cells of leaves especially. It is known as palisade parenchyma. Palisade parenchyma. जो मेसोफिल्स में, लीफ के मेसोफिल में जो पैरेंकाइमा, क्लोरेंकाइमा पाया जाता है, वो पैलिसेड पैरेंकाइमा है। इसके बाद आता है एरेनकाइमा। नाम से है, it is also a special type of parenchyma it contains large air cavities. It contains large air cavities. It gives buoyancy. It gives buoyancy to the aquatic plant to float on water. ये क्या करते हैं? और जल पानी में पाए जलीय पौधों में, जल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनको ये buoyancy देते हैं ताकि ये सतह पर तैर सके। It gives buoyancy to the aquatic plants to float on water. कौन देता है? Parenchyma. Parenchyma which contains large, it is also a special type of parenchyma. It contains large air cavities. It gives buoyancy to the aquatic plants to float on water. These are air cavities. Parenchyma. These are parenchymatous cells. These are the example of parenchyma. So what is parenchyma? We have discussed what parenchyma क्या होता क्या है। ये थिन वॉल लिविंग सेल्स हैं। सेल्स के जो थिन वॉल हैं, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन के बने होते हैं। शेप राउंड, ओवल, पॉलीगोनल और एलोंगेटेड हो सकते हैं। Cells are loosely arranged. Arranged cells are loosely arranged. Hence, intercellular space present. Nucleus is small. Cytoplasm is dense. Central large vacuoles are present, and it is of two types: Chlorenchyma and Erenchyma. Right? Now, next one is Collenchyma. First one, the function of parenchyma. We would like to discuss about the function of parenchyma. Function of parenchyma.
It serves as packaging and ground tissue. It serves as packaging and ground tissue and maintain the shape and firmness of plants. Large intercellular space helps in gaseous exchange. लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन आउट, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड। It stores not only useful substances but also stores wastes like tannin, resin, gums, etc. We are discussing, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? पैरेन्काइमा के फंक्शन के बारे में। इसमें दो तीन बातें हमने बताई कि एक लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज। इट स्टोर्स नॉट ओनली, ये सिर्फ यूजफुल सब्सटेंस को स्टोर नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट वेस्ट हैं, जो प्लांट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं लाइक टैनिन, रेजिन, गम्स, ये सब भी ये स्टोर करते हैं। इन सक्लेंट जियोफाइट्स, सक्लेंट जीरोफाइट्स, सक्लेंट जीरोफाइट्स का क्या मतलब होता है कि ऐसे सक्लेंट जीरोफाइट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट 3 टाइप के होते हैं: जीरोफाइट, मेसोफाइट एंड हाइड्रोफाइट। जीरोफाइट, मेसोफाइट एंड हाइड्रोफाइट। जीरोफाइट वैसे पौधे जो रेगिस्तान में उगते हैं, ऐसी जगह पे उगते हैं जहां वर्षा कम होती है, जहां पानी की स्कैर्सिटी होती है, वैसे जगह को बोलते हैं जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो पानी में पौधे होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। और जो जनरल पौधे मेसोफाइट्स जो आप फेवरेबल कंडीशन होता है, जैसे प्लेन्स में हम लोग के इधर प्लेन में जो होता है वो उसमें जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं मेसोफाइट्स। तो सक्लेंट जीरोफाइट्स का मतलब वैसे पौधे जैसे कैक्टस को अगर आप देखेंगे, अगर उसका डिसेक्शन करेंगे तो अंदर में ढेर सारा गूदा जैसा भरा रहता है। एलोवेरा इज द एग्जांपल ऑफ सक्लेंट जीरोफाइट्स। ये इसमें भी आप देखेंगे अंदर में गूदा जैसा भरा रहता है, ऊपर से देखिए कांटा और अंदर में गूदा भरा रहता है, ऐसे तो बोलते हैं सक्लेंट जीरोफाइट्स। इन सक्लेंट जीरोफाइट्स लाइक cactus, opuntia,
Succulent xenophytes, it helps to store water in plants. It also helps in the lateral conduction of water and food. Xylem parenchyma and phloem parenchyma, इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज कोलेनकाइमा। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? पैरेंकाइमा के बारे में। क्या बताया पैरेंकाइमा के बारे में? पैरेंकाइमा ये एक प्रकार ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है, ठीक। इसके सेल्स कैसे होते हैं? थिन वॉल सेल्स आर लीविंग। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और पेक्टिन। न्यूक्लियस इज स्मॉल, साइटोप्लाज्म dense, arrangement loosely arranged and in large intercellular space present and large central vacuoles present. They are mostly present. आपको इसके बारे में इसके फंक्शंस के बारे में पता है। पैरेंकाइमा के दो टाइप बताया हमने, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ऐसे पैरेंकाइमा सेल, ऐसे पैरेंकाइमेटस सेल्स जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, ऐसे को बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। ये ज्यादातर ये लीव्स के मेसोफिल्स में, स्पेशली पैलिसेड पैरेंकाइमा में पाया जाता है। दूसरा जो है एरेनकाइमा, एरेनकाइमा एयर एंड पैरेंकाइमा, ऐसा पैरेंकाइमा जिसमें लार्ज एयर कैविटीज होती है। इट इज इसमें लार्ज एयर कैविटीज होती है। ये ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं और इनका काम क्या है? इट गिव्स बुओयंसी टू द एक्वेटिक प्लांट्स फॉर द फ्लोटिंग, इजीली फ्लोटिंग। पानी में तैरने के लिए जैसे लोग ट्यूब पहन करके घूमते हैं। ट्यूब क्या है? ट्यूब के चारों तरफ गोला रहता है, बीच में होल, खाली जगह रहता है, ट्यूब के अंदर हवा भरी रहती है। वो आपको तैरने में इट प्रोवाइड्स बुओयंसी टू फ्लोट ऑन द वाटर इजीली। वैसे ही इसमें एरेनकाइमा भी जो है वो आपके प्लांट के एक्वेटिक प्लांट्स को पानी के ऊपर तैरने में मदद करता है। लोटस, जलकुंभी जो आप देखते हैं, ये सब के सब जल पानी के ऊपर जो तैर रहे हैं पौधे, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, ए टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेंकाइमा। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन ऑफ पैरेंकाइमा के बारे में पढ़ा कि ये it serves as packaging and ground tissue and maintain the shape and firmness of plant। हम लोगों ने पहले पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। ये मेन पैकेजिंग का टिश्यू काम करते हैं और बल्क में परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं? ज्यादातर प्लांट बॉडी के बल्क पोर्शन को ये बनाते हैं, क्योंकि मेडिसिमेटिक टिश्यू तो बस उनका काम है लगातार सेल डिवीजन करना। सेल डिवीजन करने के बाद जैसे जैसे दूध बड़े होते गए धीरे धीरे वो परमानेंट शेप में कन्वर्ट होते चले, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते चले। तो वो परमानेंट टिश्यू ज्यादातर प्लांट बॉडी को कंस्टिट्यूट करते हैं। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस कहता है लूजली अरेंज्ड है, इसलिए इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है और इस इंटरसेलुलर स्पेस के कारण इसमें क्या होता है? ये गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। ये इसका दूसरा तीसरा काम क्या है? इट स्टोर्स not only useful for substance but also stores waste like
टैनिन, रेजिन और गम्स ऐसे सब्सटेंस को भी ये स्टोर करते हैं। फिर है इन सक्लेंट जियोफाइट्स लाइक कैक्टस, इट स्टोर्स वाटर, इट हेल्प्स टू स्टोर वाटर इन द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट? It also helps in the lateral conduction of water and food. Example: xylem parenchyma and phloem parenchyma. Phloem parenchyma helps in the lateral conduction of food, and xylem parenchyma helps in the lateral conduction of water. Xylem parenchyma क्या करते हैं? lateral पानी के water के lateral conduction में मदद करते हैं, और phloem parenchyma food के lateral conduction में मदद करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कोलेंकाइमा। स्टूडेंट से आग्रह, स्टूडेंट विद्यार्थियों से हमारा आग्रह है कि जो कुछ भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन और अपने डाउट को लिखें, ताकि हमारी कोशिश रहेगी आपके सारे डाउट को क्लियर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पढ़ाई हम लोग यहाँ से दे सकें। इसके लिए बच्चों से आग्रह है, अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट को पढ़ें, समझें, किताब से मिलाएं और देखें कहीं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, अपना डाउट कुछ रखना चाहते हैं, अपना कोई क्वेश्चन रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दीजिए, ताकि हम लोग कोशिश करेंगे आपके डाउट को भी जितना जल्दी हो क्लियर करें। अगला है कोलेंकाइमा। इनकाइमा टिश्यू, कॉलम, ग्लू, एक चीज ध्यान रखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू are the parent tissue of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, xylem and phloem। ये सब के पेरेंट टिश्यू इसी से ये डिराइव करते हैं, ठीक? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो पहला टिश्यू डिराइव हुआ वो पेरेंकाइमा। अब ये पेरेंकाइमा थोड़ा सा और, इसमें थोड़ा सा और कुछ स्पेशलाइजेशन हुआ, दे कन्वर्ट इनटू कोलेंकाइमा। इससे में कन्वर्ट हो गया कोलेंकाइमा। तो कोलेंकाइमा में भी यही होता है कि सेल्स आर लिविंग, cells are living, shape are rounded, oval, elongated, polygonal, शेप कैसे होते हैं इनके? राउंडेड, ओवल, पॉलीगोनल। सेल्स आर unevenly thickened, मतलब इर्रेगुलर थिकनिंग। Cells are irregular thickening present, especially at the corners, of cells, at the corners. Thickening
is due to deposition of cellulose. Thickening of cellulose compactly arranged. Intercellular space absent. इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। जब ये सेल थिकनिंग के कारण इधर सट गए हैं आपस में, तो इनके में अरेंजमेंट हो गया कॉम्पैक्टली अरेंज और इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। They also contain chlorophyll, hence helps in photosynthesis. They also contains chlorophyll, hence they helps in photosynthesis. Now, function of collenchyma. Don't be confused between chlorenchyma and collenchyma. Don't be confused in collenchyma and chlorenchyma, right? Chlorenchyma is the example of parenchyma. Collenchyma is another simple permanent tissue. It is derived from permanent parenchyma. Parenchyma जब स्पेशलाइज और स्पेशलाइज हो जाते हैं तो collenchyma और तो होंगे तो फिर sclerenchyma। ये हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ये अभी फिलहाल आप ये collenchyma means glue, चिपका glue, this one। सेल्स आपस में सट गए हैं, इंटरसेल कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए हैं, आपस में सट गए और आपस में एक इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। The other cells are living. Cell wall have an irregular thickening at corners due to the deposition of cellulose, right? तो हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन इसका क्या है? Of collenchyma. Being flexible, it provides tensible strength. It provides tensible strength to the various parts of plant. Being flexible, इससे सेल्स तो लिविंग होते हैं और इनमें जो इरेगुलर थिकनिंग है इसके कारण ये प्रोवाइड करते हैं। आप देखते होंगे आंधी में बहुत सारे
पौधे हैं ऐसे ऐसे झूलते हैं। आप बहुत सारे बैम्बूस का पतला, अब देखिए कोई किसी पेड़ का पतला डाल है, कच्चा है, लेकिन ऐसे उड़िएगा तो उड़ जाता है, फिर छोटा सीधा हो जाता है। दिस इज नोन एज टेंसिबल स्टेम। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या करते हैं, पौधे के ब्रांचेस में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। आप कोई पत्ता किसी पेड़ से लगा रहता है, ये फॉर्मली इरेक्ट है, तो किस लिए होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ। वहां पर पत्तियों की मिडरी में जो डंडी होती है उसकी, दैट इज पेट्यूल, उसमें भी ये कॉलेनकाइमा पाया जाता है। प्रोवाइड्स टेंसिबल स्टेम। आंधी के समय में ये पौधों को बेंड करने में मदद करते हैं, तो ये सपोर्ट करते हैं। इट सपोर्ट्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर इजी बेंडिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म। एंड इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल वी हैव ऑलरेडी। ये क्या करते हैं मेनली, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा? It provides tensible strength to the various parts of the plant, which helps to easy bending during a storm and unfavorable condition. ये मेन काम है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के सेल्स लिविंग होते हैं, सेल वॉल में अनइवन थिकनिंग होती है। इरेगुलर थिकनिंग किसके कारण होती है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। इसके कारण ये प्रोवाइड करते हैं tensible, flexible, provide tensible extent to the various parts of the soft parts of the plant, various parts of the plant। और इसके कारण ये जुड़े रहते हैं। पौधे में एक खास किस्म के फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, जो इजी बेंडिंग, किसी को इजी बेंडिंग ऐसे मोड़ दिया, छोड़ दिया तो सीधा हो जाए, ऐसे तो बोलते हैं इजी बेंडिंग। राइट, नेक्स्ट वन इज स्क्लेरेंकाइमा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में कितने पार्ट? दो। कौन कौन? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरली, फंक्शनली एंड सिमिलर इन ओरिजिन सेल्स, या और एक ही तरीके के स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेल्स के ग्रुप को, जिनमें मैच्योर्ड सेल्स हैं, जिनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी समाप्त हो गई है, दे अटेन ए परमानेंट शेप, इनके ऐसे को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्योंकि ये एक ही प्रकार के स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक ही प्रकार के सेल्स होते हैं, जो मैच्योर्ड सेल्स हैं, और ये कहां से डिराइव किए हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। क्यों हो गया? इनमें डिफरेंशिएशन हो गया है और ये एक परमानेंट शेप एंड साइज अटेन कर लिए हैं। ठीक है, उनमें एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, इसलिए कहा गया सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट इज ऑफ थ्री टाइप। कौन कौन? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। अभी हम लोगों ने पढ़ा पैरेन्काइमा के बारे में। इसके सेल्स लिविंग होते हैं, थिन होते हैं, ओवल, कैलिकुलर, एलोंगेटेड, व्हाटएवर, लूजली अरेंज्ड होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सेल्स आर थिन वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। राइट, हम लोगों ने सब चीजों को पढ़ा। इलेक्ट्रिक रिडक्शन ऑफ वाटर में मदद करते हैं। ये सक्लेंट प्लांट्स में म्यूसिलेज के रूप में पानी को रोक के रखते हैं कैक्टस के पौधे में। इस टाइप के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ इसको पढ़ा। ये प्लांट्स के बहुत बड़े ग्राउंड टिश्यू को फॉर्म करते हैं। प्लांट का बहुत बड़ा बॉडी पार्ट्स में ये पैकेजिंग टिश्यू का, ग्राउंड टिश्यू का काम करते हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद पढ़ा कॉलेनकाइमा के बारे में। पैरेन्काइमा से थोड़ा सा अलग है कॉलेनकाइमा। नाउ लास्ट वन इज द थर्ड वन ऑफ simple permanent tissue is sclerenchyma. Is sclerenchyma.
S. sclerenchyma. Dead mechanical tissue. The cells of sclerenchyma are dead. Thickening is due to deposition of lignin, which makes the cell wall impermeable for gases, water and food. ये लिग्निन के कारण मान लीजिए, ये थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, इसके चारों तरफ this is lignin. These are the cells. लिग्निन के डिपोजिशन के कारण सेल के चारों तरफ एक बड़ी मोटी पट्टी चढ़ जाती है, और इसके कारण क्या होता है, उसमें किसी भी चीज का, चाहे वो ना उसमें वाटर जा सकता है, ना गैस जा सकता है, ना ऑक्सीजन जा सकता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड जा सकता है, ना कोई फूड जा सकता है। इन लोगों को जब किसी चीज को ना हवा पानी और भोजन नहीं मिलेगा तो नेचुरली वो डेड हो जाएगा। और यही मैं इसका वेगना थिकनिंग इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन व्हिच मेक्स द सेल वॉल इम्परमिएबल। उसके चारों तरफ परत चढ़ जाती है, जिसके कारण सेल डेड हो जाते हैं। उसमें किसी ना गैस को जाना, अंदर जाने बाहर की जाती है। इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट। सेल्स कैसे हैं? थिक वॉल। गैस कैसे हैं? डेड। लॉन्ग एंड शॉर्ट। ल्यूमेन इज नैरो। ल्यूमेन मींस ये दिस होल इज नोन एज ल्यूमेन। दिस इज ल्यूमेन। दिस ल्यूमेन इज नैरो। Now compare. This lumen is wide and this lumen is narrow comparatively. Like this, the lumen of the sclerenchymatous cells are narrow. It is protective. It provides protection and supporting. It is of two types. It mainly supports and protect the plants. आप कभी किसी बड़े पेड़ पर चढ़ते हैं या उस पर झूला लगाते हैं, अमरूद के पेड़ पर, आम के पेड़ पर, मैंगो ट्रीज, गुआवा ट्रीज पर हम आसानी से चढ़ जाते हैं, वो हमारा लोड सह लेता है, वो टूटता नहीं है। Why? Due to the deposition of
that due to the presence of sclerenchyma. And why sclerenchyma is so strong? Due to the deposition of lignin. Now next one, it is of two type. Sclerenchyma is of two type. Fibers and sclerids. Fibers or sclerids. Sclerids are also known as stone cells. Sclerids are also known as stone cells, and they are mostly present in the flesh of apple, guava. Feel crunchy, a little crunchy. आप कभी सेब को खा के एप्पल को खाइए और उसके अंदर का जो गुदा होता है, फ्रेश होता है, उसको आप क्रश या पियर, नाशपाती, पियर, एप्पल, guava, you feel a crunchy feeling, and that is only due to the presence of sclerid or stone cell. It is made up of. That is a type of sclerenchyma. Next one is fibers. Example, xylem fibers and phloem fibers. In the daily basis, we have seen jute. Example, jute is the best example of fibrous sclerenchymatous tissue. Fibrous sclerenchymatous tissue.